हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज बायोटेक्नोलॉजी के अपने सेकंड पार्ट में, जैसा मैंने आपसे कहा था कि अगर आप लोग फर्स्ट पार्ट देखोगे तो मैं सेकंड पार्ट इसका लाऊंगा। फर्स्ट पार्ट के जो बेसिक्स हैं उन्हीं को थोड़ा सा और डिटेल में अपने सेकंड पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पार्ट में बायोटेक्नोलॉजी में ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी, मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी दैट इज कॉल्ड एज रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी और जेनेटिक इंजीनियरिंग। ओल्ड के जो एग्जाम्पल हैं, मॉडर्न के जो एग्जाम्पल्स हैं, देन व्हाट आर द प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज द नीड ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। जरूरत क्या थी ऐसी ब्रांच को डेवलप करने की। We have seen the drawback of asexual reproduction, sexual reproduction, hybridization. Then we discussed about the biotechnology and the advanced branch of biotechnology that is called as recombinant DNA technology or genetic engineering. There are two principles of biotechnology. The first principle, yes, you are right. First principle is genetic engineering and second principle is bioprocess engineering. बायोटेक्नोलॉजी के लेक्चर को जिस जगह मैंने अपने फर्स्ट पार्ट में कंप्लीट किया था उसी से आज आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों ने फर्स्ट पार्ट देख रखा है, अगर नहीं दिया हुआ तो यहाँ आई बटन से आप लोग जा सकते हैं उस पर। बच्चों अगर देखोगे तो मैंने इसी पॉइंट पे एंड किया था अपने फर्स्ट पार्ट को, यहीं से मुझे आज आगे कंटिन्यू करना है। द टेक्निक्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग विच इंक्लूड क्रिएशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, पहली रिक्वायरमेंट, जीन क्लोनिंग एंड थर्ड जीन ट्रांसफर। आपको रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना है, जीन क्लोनिंग करनी है, जीन को ट्रांसफर करना, यही 3 बेसिक स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में। Overcome this limitation and allow us to isolate and introduce only one or a set of desirable gene without introducing undesirable gene into the target organism. If you know how to make a recombinant DNA, if you know how to do the process of gene cloning, and obviously you are aware from the process of gene transfer, then you can solve the problem of transfer of undesirable gene into the next generation. What are you doing? That we discussed. DNA sequence of interest. Suppose this is the DNA and this is the sequence of your DNA interest. This is the sequence of your DNA interest that you cut with the help of restriction endonuclease, commonly called molecular scissor, and at the same time you are taking a cloning vector. And both of these two, that means DNA of interest, you are going to add with cloning vector, and ultimately you are forming recombinant DNA. This is the recombinant DNA. So you can develop recombinant DNA by adding gene of interest with cloning vector. ये चीजें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। In this video lecture we are going to discuss about the first recombinant DNA that was developed by Herbert Boyer and Stanley Cohen. Herbert Boyer and Stanley Cohen, they developed the first recombinant DNA. But before going to study this, the one most important property, you are adding your DNA, your gene of interest with cloning vector, and you are expecting whenever the cloning vector will replicate inside the host cell, your gene of interest will also replicate. Yes, this is possible only if the cloning vector have this region. This region is origin of replication, ORI region. If any cloning vector have ORI region, origin of replication, then only it is able to multiplicate inside the host cell. Here in this case, we have taken the standard cloning vector. This is PBR322.
कई तरह के क्लोनिंग वेक्टर हैं, हमारी एनसीईआरटी में इसके बारे में पूरी डिटेल दे रखी है। अपने आगे के वीडियो में हम लोग एक सेपरेट वीडियो केवल PBR 322 का बनाएंगे। फिलहाल PBR 322 जिसके पास ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट है, जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट हो सकता है, मतलब जब भी क्लोनिंग वेक्टर रेप्लिकेट करेगा और अगर हम लोगों ने अपना फॉरेन डीएनए, एलियन डीएनए, डिजायरेबल डीएनए इससे कनेक्ट कर दिया, सपोज मैंने इस जगह से अपना डिजायरेबल डीएनए कनेक्ट कर दिया इस रीजन में पूरे, तो जब भी क्लोनिंग वेक्टर रेप्लिकेट करेगा उसी के साथ हमारा डिजायरेबल सेट ऑफ डीएनए भी रेप्लिकेट करेगा। तो ओराई रीजन का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो पढ़ लेते हैं एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है। इन अ क्रोमोसोम देयर इज अ स्पेसिफिक रीजन, there is a specific region, DNA sequence region called the origin of replication which is responsible for initiating replication। तो origin of replication वो साइट है जहाँ से DNA replication की शुरुआत होती है। तो ये रीज़न तो होना बहुत ज़रूरी है ना। आप कार में बैठने जा रहे हो और अगर गाड़ी आपकी स्टार्ट नहीं हो रही है, कार स्टार्ट नहीं हो रही है, तो ऐसी कार में कोई बैठना चाहेगा? क्लोनिंग वेक्टर तो वही काम का है जो रेप्लिकेट कर सके, अदरवाइज वो किसी काम का नहीं है क्लोनिंग वेक्टर। तो द क्लोनिंग वेक्टर शुड हैव द ओराई रीजन। देयरफॉर फॉर द मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी एलियन पीस ऑफ डीएनए इन एन ऑर्गेनिज्म it needs to be a part of chromosome which has a specific sequence known as origin of replication। तो जब भी जीन ऑफ इंटरेस्ट को रेप्लिकेट करवाना होगा, जिस किसी के साथ आप जोड़ रहे हो उसके पास अपना रेप्लिकेशन साइट होना चाहिए। बच्चों कितना इजी है, अगर आप घूमने जाना चाहते हो, आप ऐसी कार, ऐसी बाइक में बैठोगे जो चले, जो स्टार्ट हो, तो क्लोनिंग वेक्टर तो वही बेस्ट होगा जो स्टार्ट कर सके रेप्लिकेशन, होस्ट सेल में अपने आप को एक्सप्रेस कर सके। देन यू पीपल विल ऐड योर जीन ऑफ इंटरेस्ट टू दैट सेट ऑफ डीएनए एंड दैट सेट ऑफ डीएनए इज नथिंग बट अ क्लोनिंग वेक्टर। नेक्स्ट है, दस एन एलियन डीएनए इज लिंक्ड विद द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन so that this alien piece of DNA can replicate and multiply itself in the host organism. This can also be called as gene cloning or making multiple identical copy of any template DNA। तो जब हम लोगों ने, अगर आप देखोगे इस जगह, सपोज ये हम लोगों का क्लोनिंग वेक्टर है, ज़्यादातर जो क्लोनिंग वेक्टर लेते हैं हम लोग वो प्लाज्मिड रहता है, और इस प्लाज्मिड में ये हम लोगों ने अपना फॉरेन डीएनए इंट्रोड्यूस कर दिया है। फॉरेन डीएनए मतलब एलियन डीएनए, जिस पार्ट को आपको रेप्लिकेट करना है, और इस क्लोनिंग वेक्टर के पास एक स्पेसिफिक सीक्वेंस है, दैट इज ओराई रीजन। ओराई रीजन है, ये आपका फॉरेन डीएनए है, डिजायरेबल डीएनए है, डिजायरेबल डीएनए ओराई रीजन है। दिस इज ऑब्वियसली द एग्जांपल ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, क्योंकि इसमें क्लोनिंग वेक्टर और फॉरेन डीएनए दोनों इंक्लूड है। तो इस डिजायरेबल डीएनए की नंबर ऑफ कॉपीज बनेगी अगर आप इसे होस्ट सेल में ट्रांसफर कर दोगे, क्योंकि इसके पास ओराई रीजन है। तो ये क्लोनिंग वेक्टर लिया गया है। इस क्लोनिंग वेक्टर के अदर पार्ट भी हम लोग डिस्कस करेंगे जब PBR 322 स्पेशली डिस्कस करेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए दैट वाज प्रिपेयर्ड बाय हर्बर्ट बोयर एंड स्टैनले कोहेन। हर्बर्ट बोयर और स्टैनले कोहेन ने जब पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए फ्रेम किया, डेवलप किया, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो रिक्वायरमेंट थी वो थी, अगेन क्वेश्चन इज सेम, क्लोनिंग वेक्टर। वो क्लोनिंग वेक्टर जो फॉरेन डीएनए को लोड कर सके, जिसके पास ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट हो, जिसे आप होस्ट सेल में ट्रांसफर कर सको। जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हैं उनके पास ऐसे क्लोनिंग वेक्टर हैं
जैसे अगर आप बैक्टीरिया देखोगे तो बैक्टीरिया में ये जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल है, दिस एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल, दिस इज कॉल्ड प्लाज्मिड. दिस एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल दिस इज कॉल्ड प्लाज्मिड, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल. ये इनका मेन जेनेटिक मटेरियल है और ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल है. अगर इसे बैक्टीरियल सेल से आप बाहर भी निकाल दोगे तो भी ये प्लाज्मिड सरवाइव करेगा. और एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल है, सर्कुलर है एज यू आर ऑब्जर्विंग. ये मेन क्रोमोसोम से इंडिपेंडेंट भी रेप्लिकेट कर सकता है, मेन क्रोमोसोम के साथ मिलकर के भी रेप्लिकेट कर सकता है. प्लाज्मिड की ऐसी कई सारी प्रॉपर्टी हैं जिसके कारण इसे बेस्ट क्लोनिंग वेक्टर आप कहते हो. नंबर 1 प्रॉपर्टी, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल, सर्कुलर, you can separate out the plasmid from the bacterial cell. Second, it has the property of self replication because it has which region? Ori region, origin of replication site. इसके अलावा बच्चों अभी हम लोग देखेंगे प्लाज्मिड के पास कुछ स्पेशल सेलेक्टेबल मार्कर भी रहते हैं जिस बेसिस पे हम इसे चूज करते हैं. तो अभी फिलहाल उसमें नहीं आते. अभी हम लोगों ने जो प्लाज्मिड की डेफिनेशन लिख रखी है उसी को ही डिस्कस करते हैं. ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए. बैक्टीरियल सेल में वो सर्कुलर डीएनए जो ऑटोमेटिकली अपने आप ही रेप्लिकेट कर सकता है, मेन क्रोमोसोम के ऊपर इसकी डिपेंडेंसी नहीं है, तभी तो इसे हम बाहर निकाल करके इसका यूज कर पा रहे हैं अपने अकॉर्डिंग जैसे हमें इसका यूज करना है. एवरी प्लाज्मिड हैज, ये हमारे पास देखो खजाने की चाबी है, दैट मीन्स ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन. खुद कह रहा भाई हम रेप्लिकेट कर सकते हैं, इंडिपेंडेंट रेप्लिकेट कर सकते हैं, मेन क्रोमोसोम पे डिपेंड नहीं है. आप हमें सेल से बाहर निकालोगे, आप हमारे साथ दूसरा डीएनए ऐड करोगे, फिर भी हम रेप्लिकेट करेंगे. तो हर्बर्ट बोयर और स्टैनले कोहेन ने ऐसे क्लोनिंग वेक्टर को जब चूज किया जिसके साथ फॉरेन डीएनए को ऐड करके पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया, फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए. The construction of first recombinant DNA emerged from the possibility of linking of gene encoding antibiotic resistance with a native plasmid autonomously replicating circular extrachromosomal DNA of Salmonella typhimurium. What they did, हर्बर्ट बोयर और स्टैनले कोहेन ने किया क्या अपने एक्सपेरिमेंट में, सबसे पहले साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम के, इफ यू सी दी केस ऑफ फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए, व्हाट दे डिड, दे टुक दी plasmid of Salmonella typhimurium. This is the plasmid of Salmonella typhimurium. In this plasmid there are some region that is acting as a selectable marker. Suppose this is the region that is acting as a selectable marker. Selectable marker मतलब जिस बेसिस पे आप उसे आइडेंटिफाई कर सको, सेलेक्ट कर सको. तो ये साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम का सेलेक्टेबल मार्कर रीजन है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस रीजन है. दिस इज द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस रीजन. एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन or desirable gene that we took from which bacteria? Salmonella typhimurium. Salmonella typhimurium. This is the plasmid of Salmonella typhimurium. In their plasmid they have a specific DNA sequence. This is एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन या डिजायरेबल जीन जिसकी हमें नंबर ऑफ कॉपीज बनानी है.
किसी भी बैक्टीरिया के पास जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन होता है वो भी प्लाज्मिड के पास होता है, ये बात याद रखनी है। तो क्या किया गया, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की हेल्प से इसे कट करके बाहर निकाल लिया गया। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की हेल्प से इसे कट करके बाहर निकाल लिया। दिस इज योर डिजायरेबल डीएनए, दैट इज एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। And now we are going to add it with another cloning vector. This is the another cloning vector. This is plasmid, extra chromosomal genetic material, circular और क्लोनिंग वेक्टर। इस क्लोनिंग वेक्टर के साथ इस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन या डिजायरेबल डीएनए को हम लोग ऐड कर देंगे। और हमें याद रखना है कि जो क्लोनिंग वेक्टर हम लोगों ने लिया है उस क्लोनिंग वेक्टर के पास स्पेशल रीजन होना कंपलसरी है, दैट इज ओराई रीजन, फर्स्ट पॉइंट। और सेकेंड पॉइंट आपको याद रखना है कि अगर क्लोनिंग वेक्टर के साथ आपको डिजायरेबल डीएनए जोड़ना है तो इस पर्टिकुलर पार्ट को भी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से हमें कट करके इसे हटाना पड़ेगा। तो ये वाला जो पार्ट है, सिर्फ ये वाला पार्ट हमें हटाना पड़ेगा। ये पार्ट आपको रिमूव करके हटाना पड़ेगा। और फिर हम लोग यूज करेंगे नन अदर देन डीएनए लाइगेज जो जोड़ने के काम करता है। इट विल ज्वाइन द क्लोनिंग वेक्टर विद एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। So now we are adding this foreign DNA here. So in this way we prepared the first recombinant DNA. For the preparation of first recombinant DNA, we took antibiotic resistance gene, desired DNA from Salmonella typhimurium. Obviously you will cut that particular part of plasmid of Salmonella typhimurium with the help of restriction endonuclease enzyme. You are taking the cloning vector, that is plasmid of another bacteria, and you have to add that desirable DNA with it with the help of DNA ligase. And when you did so, you prepared the first recombinant DNA, and that was not done by us, that was done by Herbert Boyer and Stanley Cohen. तो हर्बर्ट बोयर और स्टैनले कोहेन, फिर से पढ़ते हैं इसे। The construction of the first recombinant DNA emerged from the possibility of linking a gene, वो जीन जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस था, नेटिव प्लाज्मिड का पार्ट था। किस प्लाज्मिड का पार्ट था? साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम का। स्टैनले कोहेन और हर्बर्ट बोयर ने एकम्प्लिश किया ये टास्क 1972 में, बच्चों ईयर याद रखना है, बाय आइसोलेटिंग द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन बाय कटिंग आउट अ पीस ऑफ डीएनए फ्रॉम प्लाज्मिड व्हिच वाज रिस्पांसिबल फॉर कन्फरिंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। तो साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम का जो पर्टिकुलर प्लाज्मिड का पार्ट एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस था उसे कट करके अलग करके दूसरे क्लोनिंग वेक्टर के साथ जोड़ा गया। इस तरह से 1972 में पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना। तो ये हमारे लेक्चर का मेन पार्ट था। और next, if you see, there are 3 basic steps that we are following in this recombinant DNA procedure. You have to identify the desirable set of DNA that you have to clone. आपको पता तो होना चाहिए कि क्या चीज़ आपको क्लोन करनी है। जैसे अभी डिजायरेबल सेट ऑफ डीएनए हम लोगों ने कहाँ से लिया? साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम से। इंट्रोडक्शन ऑफ द आइडेंटिफाइड डीएनए इनटू द होस्ट,
जो डीएनए आपने आइडेंटिफाई किया उसे होस्ट में जब तक आप ट्रांसफर नहीं करोगे तब तक उसकी मल्टीपल कॉपीज नहीं बनेंगी। और मेंटेनेंस ऑफ द इंट्रोड्यूस्ड डीएनए इन द होस्ट एंड ट्रांसफर ऑफ द डीएनए टू इट्स प्रोजेनी। हम लोगों ने जिस रिकॉम्बिनेंट डीएनए या डीएनए को होस्ट सेल में ट्रांसफर किया है, जब वो होस्ट सेल रेप्लिकेट करके अपनी नंबर ऑफ कॉपीज बना रहा है तो जो हमारा डिजायरेबल सेट ऑफ डीएनए वो भी नेक्स्ट जनरेशन में जाए, ये भी हमें इंश्योर करना है। दीज थ्री आर दी बेसिक स्टेप ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जो हमें याद रखने हैं। और एनसीईआरटी का ये लास्ट डायग्राम जो आपके साथ डिस्कस करना है मुझे, जो चीजें अभी तक हम लोगों ने करी है सब चीजें रिकैप करते हैं, रिवाइज करते हैं। पहला स्टेप, फॉरेन डीएनए, एलियन डीएनए, डिजायर्ड डीएनए, जो भी डीएनए आपको क्लोन करना है दैट यू शुड हैव, वो आपके पास होना चाहिए। क्लोनिंग वेक्टर, वेक्टर डीएनए, since restriction enzyme cutting both foreign DNA and vector DNA at a specific point, आपने ऐसा restriction एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम लिया है जो क्लोनिंग वेक्टर को कट करेगा, जो कट करेगा फॉरेन डीएनए को। फॉरेन डीएनए को ऑलरेडी हम लोग कट करके ही ला रहे हैं। दोनों प्लेसेस पे सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम को यूज करना चाहिए। तो ये देखिए कट हो गया ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम, और ये क्लोनिंग वेक्टर लाइगेज एंजाइम के हेल्प से जोड़ देंगे तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल। और जब इसे होस्ट सेल में, स्पेशली बैक्टीरिया सेल इशर्सिया कोलाई में ट्रांसफर करते हैं, दिस प्रोसीजर इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफर करना बैक्टीरियल सेल में, दिस इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। और जब ये अपनी मल्टीपल कॉपीज बनाएगा, दिस इज कॉल्ड जीन क्लोनिंग। तो जब हम लोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट सेल में ट्रांसफर कर देंगे और होस्ट सेल में वो अपनी नंबर ऑफ कॉपीज बनाएगा, देन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड जीन क्लोनिंग। तो अपने इस वीडियो लेक्चर में बच्चों फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना, जो 3 बेसिक स्टेप थे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, जीन क्लोनिंग, जीन ट्रांसफर, हर्बर्ट बोयर, स्टैनले कोहेन का कंट्रीब्यूशन, आपको डिजायरेबल सेट ऑफ डीएनए को आइडेंटिफाई करना है, क्लोनिंग वेक्टर चाहिए, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने अपने इस लेक्चर में डिस्कस करी हैं। अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो पहला और दूसरा आपका अगर क्लियर होगा तभी नेक्स्ट हम लोग आगे स्टार्ट कर पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।